Hello and welcome to everyone present here. As you know that we have been discussing the chapter Nationalism in India, and we have just discussed about various aspects of the civil disobedience movement. We had seen that how did Mahatma Gandhi organize the civil disobedience movement by the help of historic Dandi March and breaking the salt law. And then we had seen how did this movement spread in different parts of the country and people participated in this movement by refusing the obey the British rule and violating the British laws. And then we had seen the British government had started to clamp down this movement, arrested many prominent leaders, and more than 1 lakh satyagrahis were also arrested. And meanwhile, the then Viceroy Lord Irwin had given proposal Mahatma Gandhi to participate in second roundtable conference to be held at London, and withdrawing back of the uh, civil decision movement. And in lieu of these two agreement by Mahatma Gandhi, the British government would release all the satyagrahis who were imprisoned in the British jail. So consequently, Mahatma Gandhi did the same thing, but when he returned back after getting failure of the second roundtable conference, he found that Congress was declared illegal and many prominent labor leaders, including Jawaharlal Nehru, were in the jail. So he had once again relaunched the civil disobedience movement in 1932, but ultimately he called off the civil disobedience movement in 1934 due to it very slow. Then we had discussed about the participation of different groups in civil disobedience movement. We had seen the participation of the rich community, including jamindars and talukdars. And then we had discussed about the participation of peasants, poor peasants. Then we had discussed about the participation of the business class people. Then we had discussed about the participation of the working class people in the factory. Then we had discussed about the participation of the women. Then we had discussed about the contribution of the civil disobedience movement. Now here it is time to discuss about the limitation of the civil disobedience movement. सविनय अवज्ञा आंदोलन की सिविल नफरमानी की क्या क्या मतलब सीमाएं थी इस आंदोलन की, उसको हम लोग देखते हैं। सीमा का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर ये आंदोलन अपना मतलब मोमेंटम नहीं पकड़ पका, वहाँ पर ये आंदोलन उतना विस्तार नहीं हो पाया, वो कुछ सीमाओं के अंदर ही रुक गया। तो आखिर वो सीमाएं क्या थी, वो आंदोलन क्यों इतना विस्तार नहीं ले पाया और क्यों नहीं इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाए, यही तो इसकी सीमाएं हो सकती हैं। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए होंगे, ये पूरे अपने मतलब एरिया में फैला नहीं होगा सभी लोगों को समाहित करते हुए। आंदोलन तो यही होता है कि वो पूरा फैलना चाहिए, सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो इसकी कमियां होगी, सीमाएं होगी। तो वो क्या कमियां थी, क्या सीमाएं थी? Dalits did not participate in civil disobedience movement because the Congress did not गिव इम्पोर्टेंस टू देयर डिमांड्स। एक हिंदू समाज में कम्युनिटी होती थी जिसे अनटचेबल कहते हैं, छूत कहते हैं, और दिस ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन इन इंडियन हिंदू कम्युनिटी सिंस एंशियंट टाइम एंड इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। सो दिस कम्युनिटी was not connected with the Congress, and Congress was also not adhering to their demands, so they did not participate in the civil disobedience movement। ये समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया, एक कमी ये हुई। दूसरा था मेनी मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, दे थॉट दैट द कांग्रेस वाज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, भाग नहीं लिया, क्योंकि अब वो कांग्रेस पार्टी को इस नज़रिए से देख रही थी कि वो अब हिंदुओं की पार्टी बनती जा रही है, और हिंदुओं की एक राष्ट्रवादी मतलब पार्टी थी हिंदू महासभा, उसकी तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम कम्युनिटी ने उस ओर ध्यान मतलब सिविल डिसोबीडियंस में भाग नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लोगों के भी एक नेता अब आ चुके थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और उनकी दिशा निर्देश में अब मुस्लिम लोग आगे की आंदोलन में अपने कार्रवाइयों में भाग लेने का निर्णय लेते थे। कॉम्युनल राइट्स अकर्ड इन मेनी प्लेसेस, डिसयूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम स्टार्टेड। इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी मतलब बुरी चीज़ ये हुई कि इसमें हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो गए, और हिंदू मुस्लिम दंगे होने से भारतीय समाज
थोड़ा कमज़ोर पड़ा, एकता में टूटन आई, जिससे कि ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन करने में उतनी ताकत नहीं मिली आंदोलन को। इंडस्ट्रियल वर्कर पार्टिसिपेशन वाज मिनिमम। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का भी इस आंदोलन में काफ़ी कम योगदान है। सो वी कम टू नो 4 लिमिटेशन ऑफ दिस मूवमेंट। द untouchable and Dalit participation was not at all there. Then Muslim community had also not participated at large scale, and communal right had also taken place, and industrial worker participation was very less. Now the next topic is efforts made by Gandhiji for the upliftment of Dalits. So who were being called Dalits in Hindu community, society, and what were efforts made by Gandhiji for their upliftment and to connect them in the Indian freedom struggle, to make a struggle more powerful and cover up the sense of disunity among the Hindu community, because Britishers were perceiving and following the guidelines of डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों का तो ये चलना ही था कि फूट डालो और शासन करो, तो समाज जितनी भी आधार पर बिखर जाए, टूट जाए, उसके लिए वो हमेशा अंग्रेज लोग मतलब इस बात के चाहत में रहते थे। तो गांधी जी को तो इस बात को ध्यान था कि हिंदू समाज में एक जो कमी है, उस कमी को कैसे पूरा किया जाए और उसको कैसे मतलब एकता मजबूत की जाए। गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ही सेड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एबॉलिश्ड। तो गांधी जी तो खैर उनका विचार तो उत्तम थे ही, तो उन्होंने अनटचेबिलिटी का जो माने छुआछूत वाला जो भाव था भारत हिंदू समाज में, कि कुछ विशेष वर्गों को, लोगों को सार्वजनिक तालाबों पर, सार्वजनिक मतलब स्थानों पर, सार्वजनिक मंदिरों में जाने की मनाही होती थी। वो गांव के बाहर दूसरे मतलब जगहों में रहते थे, मुख्य धारा में वो शामिल नहीं होते थे और समाज में उनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता था। तो इस तरह के जो भारत हिंदू कम्युनिटी में, समाज में जो तरह की जो मतलब प्रथा थी, उस प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध थे। इसे ही अनटचेबिलिटी कहते। और उनका मानना था कि भारत में स्वराज 100 सालों तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने इस प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन्स और सन ऑफ गॉड। उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने अनटचेबल पर्सन के लिए एक नया नाम दिया, हरिजन्स। हरि के पुत्र, मतलब वो गॉड के सन है, देवता के सन है, अनटचेबल नहीं है। He organized satyagrahs to get temple entry and access to public wells, tanks, roads and schools for Dalits. तो अनटचेबल पर्सन को जो सार्वजनिक मतलब कुएं होते थे, तालाब होते थे, सार्वजनिक सड़कें होती थी, स्कूल होते थे, मंदिर होते थे जहाँ उनको प्रवेश की मनाही होती थी, इन सारे चीज़ों में उनके आवाजाही मतलब उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए गांधी जी सत्याग्रह भी किए थे। He cleaned Harijans colonies and in his ashram there was no caste feeling. तो गांधी जी तो साबरमती आश्रम में ही रहते थे। साबरमती आश्रम गुजरात में था और वहीं से वो भारत में बड़े बड़े आंदोलन ऑर्गेनाइज करते थे, फिर भारत का भ्रमण करते थे। तो गांधी जी ने मतलब अनटचेबल पर्सन की प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए, हरिजन को प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए उनकी बस्तियों में जा जा कर के सफाई करते थे और अपने आश्रम में भी किसी तरह का वो छुआछूत का पालन नहीं करते थे, प्रथा को नहीं मानते थे। He asked the upper caste Hindus to give up the inhuman practice of untouchability. महात्मा गांधी का ये बहुत बड़ा मतलब जोर था, प्रयास था कि हिंदू समाज में जो एक तरह की प्रथा है, इस प्रथा को समाप्त किया जाए और वो हिंदुओं को मतलब जो ऊंची जातियों के थे उससे आग्रह करते थे बार बार इस प्रथा को समाप्त किया जाए। अब गांधी जी वर्सेस अंबेडकर, गांधी जी और ये जो अनटचेबल हम कहते हैं, इनके एक नेता सामने उभर कर आए और वो हमारे संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर दलितों के मतलब अनटचेबल पर्सन के उत्थान के लिए उनका ऐसा विचार था कि जब तक उनको राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक उनका सामाजिक उत्थान भी नहीं होगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जब भारत स्वतंत्र भारत बने तो केंद्रीय विधानमंडल में मतलब अनटचेबल पर्सन के लिए एक चुनाव जो हो वो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से हो। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र मतलब निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, तो फिर वहाँ से वही चुन कर जाएंगे और फिर जब उनकी संख्या बल ज़्यादा होगी तो फिर वो अपना
बात को मजबूती से आगे रखेंगे। तो गांधी जी और मतलब अम्बेडकर जी का डिमांड था क्या? अम्बेडकर जी का डिमांड था सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर दी दलित्स, माने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दी दलित्स, मतलब कि एक निर्वाचन क्षेत्र जो हो वो अलग से हो, केवल उन्हीं कम्युनिटी के लिए हो, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र न हो। Dr. Ambedkar demanded separate electorate for the Dalits. He thought that a share in political power would help in their upliftment. Gandhiji opposed separate electorates. He thought that it would create disunity. So they clashed in the second round table conference. तो डॉक्टर अम्बेडकर जो अनटचेबल कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी का मतलब नेतृत्व करते थे, उनको भी अंग्रेज लोग बुलाते थे और वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन भाग लेने। और सेकेंड राउंड टेबल में जब गांधी जी गए थे तो वहाँ पर अम्बेडकर जी ने यह डिमांड कर दिया अंग्रेज सरकार के सामने कि हमें जब भारत का संविधान बनेगा तो उसमें जो निर्वाचन की व्यवस्था होगी उसमें हमें सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। और गांधी जी का कहना था कि इस तरह से अगर वो लोग अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग रखेंगे तो फिर हिंदू समाज में, हिंदू कम्युनिटी में एकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उनके बीच में मतलब दुराव होते चला जाएगा। और अम्बेडकर जी का विचार था कि अगर उनको सेपरेट मिल जाता है तो फिर उनको राजनीतिक शक्ति मिलेगी, राजनीतिक शक्ति से फिर उनको सामाजिक शक्ति ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर मतलब कन्फ्लिक्ट हो गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही। और अंग्रेजों को तो ये चालते ही फुट डालो राज करो, तो वो तुरंत मान बैठे, मांग अम्बेडकर की मांग को तुरंत मान लिए थे। फिर क्या हुआ, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए अम्बेडकर जी की इस मांग के विरुद्ध। तब क्या हुआ, तब गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर इन September 1932. Gandhi ji brought an end to his fast. He accepted the demand for reservation of seats for Dalits in the legislature. Ambedkar agreed to give up the demand of separate electorates. तो गांधी जी और जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए तो फिर बाद में मतलब अंबेडकर जी और गांधी के बीच में जाकर एक समझौता हुआ जिसका नाम पड़ता है पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट का क्या परिणाम हुआ कि अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दी और गांधी जी ने दलितों के लिए सीट रिजर्व की बात मान ली केंद्रीय विधान सभा। मैंने सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही उनके लिए सीट रिजर्व हो जाएगी, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो को अम्बेडकर जी का डिमांड था। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ, लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में उनके लिए सीट रिजर्व की बात मान ली और एमपी में, पार्लियामेंट में उनके लिए सीट आज भी रिजर्व है, एससी और एसटी दोनों कम्युनिटियों के लिए। और लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र को जो मांग अम्बेडकर जी ने रखा था वो मांग उन्होंने अपना छोड़ दिया। सो इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट द limitation of the civil disobedience movement and efforts made by Gandhi ji for the upliftment of the Dalits, and Gandhi ji versus Ambedkar that resulted in the agreement of Pune Pact. Then we will discuss about the sense of belongingness in the next topic. मतलब भारत में जो विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे वो किस तरह से अपने को एक ही देश भारत का निवासी मानने लगे। अब एक ही देश भारत का निवासी, एक ही राष्ट्र भारत को देखने लगे, तो एक ही राष्ट्र, एक ही देश भारत का निवासी मानने के लिए उनके बीच में कुछ एकता का सूत्र जोड़ने के लिए कुछ रहा होगा। तो एक कल्चरल मूवमेंट यहाँ भी भारत में हुआ था और कल्चरल मूवमेंट के माध्यम से भारत में सेंस ऑफ बिलोंगनेस, मतलब एक राष्ट्र का निवासी होने की भाव सभी लोगों में आ गया, क्योंकि सभी लोगों में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति और संप्रदाय की बात थी, लेकिन फिर भी सभी लोग अपने को एक ही राष्ट्र का निवासी मानने लगे। और ये भाव जगाने के लिए भारतीय आंदोलन के दौरान क्या क्या कदम उठाए गए, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके।